Hello student. Hello. Class 9th student. Yes, sir. Hello. Yes, sir. 9th student. Hello. मेरे आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं? क्लास 9th है भी? हेलो स्टूडेंट. Yes, sir. हेलो स्टूडेंट. क्लास 9th है Yes, sir. भी? आप तक आवाज जा रही है? हेलो. हेलो स्टूडेंट. हेलो. हेलो. बच्चे आप तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं? Yes, sir. मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस नो में उत्तर दीजिए. ठीक है, लेकिन आप लोगों की आवाज यहां तक नहीं आ रही है. कोई बात नहीं. Class 9 A B. Class 9 A subject social science, political science. Good morning, sir. Chapter 3. Topic electoral politics. Students, today I start Good the morning, civics sir. third chapter, electoral politics. Hello, Good morning, student sir. of class 9th AB. Good morning, sir. Yesterday I have sent to you home assignment. So kindly do the home assignment and send through the Google Class. तो बच्चे का जो मैं होम असाइनमेंट भेजा हूं उसे करके आज गूगल क्लास में भेज दीजिएगा. Now I am going to start the civics fourth chapter, third chapter, electoral politics. In this chapter, we will study about how the elections are held in our country and what is the role of the electoral politics and also chief election of commissioner. Chief election of commissioner, what is the role and how they conduct the election in our country in various states after these 5 years. In the Lok Sabha election, in the Rajya Sabha election, and Vidhan Sabha election, all the elections are conducted by the chief election or commissioner after each specific period, after each 5 years. तो व्हाट आपको समझा कि व्हाट इज द प्रोसेस इलेक्शन में क्या प्रोसेस है, किस तरह से जो है इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं. ओके,
So now I am going to start from the first paragraph. Why election? Assembly election in Haryana. मैं हरियाणा के इलेक्शन असेंबली इलेक्शन के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ. Yeah, it is the just like the in 1987 at that time the chief minister of the Haryana, he was the Devilal, Chaudhary Devilal. Chaudhary Devilal, he was the chief minister of the Haryana, and how they formed the new party named the Lok Dal, नया है, नया युद्ध, कौन नया युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस. तो चौधरी देवीलाल के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ और हरियाणा के इलेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ. This newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. 1987 में हरियाणा में जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उसमें the state had been ruled by a Congress party led government since 1982. उस समय 1982 से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस रूल करके आ रही थी. And before 1987 in Haryana, there the Congress party was ruling. At that time, चौधरी देवीलाल then an opposition leader. उस समय चौधरी देवीलाल विरोधी दल के नेता थे, कांग्रेस के विरोधी दल के नेता थे, ऑपोजिशन पार्टी के नेता थे. Led a movement called नया युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म द न्यू पार्टी, लोक दल. चौधरी देवीलाल ने एक नया पॉलिटिकल पार्टी जो बनाया. उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था नया युद्ध और इसका नाम पड़ गया लोक दल. चौधरी देवीलाल फॉर्म ए न्यू पार्टी, इट वाज कॉल्ड द लोक दल. चौधरी देवीलाल ने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाया उसका नाम था लोक दल. This party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the election. In the election campaign, Devilal said that if his party won the election, his government would waive the loan of the farmer and small businessmen. तो हरियाणा के असेंबली इलेक्शन में चौधरी देवीलाल जो है वो इलेक्शन में उन्होंने अपना खड़ा हुआ और विरोधी पार्टी के रूप में कांग्रेस के अगेंस्ट में ही फॉट द इलेक्शन अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी एंड ही अनाउंस्ड टू द पीपल दैट इफ आई विल विन द इलेक्शन देन waive the loan of the farmer and small business. चौधरी देवीलाल ने कहा यदि मुझे असेंबली इलेक्शन में जीत मिलती है तो मैं फार्मर और गरीब फार्मर और बिजनेसमैन के लोन को, कर्ज को माफ कर दूंगा. अच्छा, यानी कि फार्मर और बिजनेसमैन के जो लोग लोन लिए हैं बैंक से, उनके कर्ज को मैं माफ कर दूंगा. तो चौधरी देवीलाल उन्होंने फार्मर से और बिजनेसमैन से बोला कि यदि मैं इलेक्शन में जीत जाऊंगा तो मैं फार्मर और बिजनेसमैन के जो कर्ज है, लोन है, उन्हें माफ कर दूंगा. He promised that he would be the first action of his government. उन्होंने प्रॉमिस किया जनता से कि जैसे ही मैं इलेक्शन जीतता हूं हरियाणा का, पहला काम मैं यही करूंगा कि लोगों के कर्ज की माफी. The people were unhappy with the existing government. लोग, हरियाणा के लोग कांग्रेस गवर्नमेंट से खुश नहीं थे. They were also attracted by the देवीलाल promise. वे चौधरी देवीलाल के प्रॉमिस से, वादे से काफी प्रभावित हुए. So when elections were held, जैसे ही इलेक्शन जो है शुरू हुआ,
they voted overwhelmingly in favor of the local and its allies. और उस इलेक्शन में हरियाणा के लोगों ने चौधरी देवीलाल को काफी सपोर्ट किया और इस इलेक्शन में लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स ऑन 76 आउट ऑफ 96 इन द स्टेट असेंबली। और हरियाणा के असेंबली के इलेक्शन में चौधरी देवीलाल को 90 सीट में 76 सीट से विजय मिली, यानी कि उन्होंने 90 में 76 सीट जो ऑन किया, ऑन द 76 सीट आउट ऑफ द 90 में 76 सीट को उन्होंने जीत लिया। लोक दल अलोन और 60 सीट्स एंड thus had a clear majority in the assembly, और असेंबली में उनको क्लियर मेजॉरिटी मिल गई। कांग्रेस could win only 5 सीट्स और कांग्रेस को केवल 5 सीट प्राप्त हुआ। Once the elections results were announced, जैसे ही इलेक्शन का जो रिजल्ट परिणाम जो डिक्लेयर हुआ, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन, कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से, और द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ऑफ द लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। और क्या हुआ, लोकदल के जो मेंबर थे उन्होंने चौधरी देवीलाल को अपना मंत्री चुना, चीफ मिनिस्टर उन्हें बनाया, चीफ मिनिस्टर के लिए उन्होंने चुना चौधरी देवीलाल। The government invited देवीलाल to be the new chief minister। इस प्रकार सरकार ने नए चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया उनकी सरकार बनाने के लिए। As soon as he became the chief minister, और जैसे ही वे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने, his government issued a government order waiving the outstanding loan of the small farmer, agriculture laborers and the small businessmen। जैसे वे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने असेंबली में अनाउंस किया और फार्मर, छोटे फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर और छोटे बिजनेसमैन के जो कर्ज थे उनको पूरी तरह से उन्हें माफ कर दिया। According to his promise, he done first work। पहला काम उन्होंने किया अपने वादे के अनुसार, स्मॉल बिजनेसमैन, फार्मर और एग्रीकल्चर लेबर्स, उनके कर्ज को, लोन को उन्होंने पूरी तरह से माफ कर दिया। His party ruled the state for 4 years। और चौधरी देवीलाल हरियाणा में 4 साल तक चीफ मिनिस्टर बने रहे। उसके बाद दूसरा जो अगस्त जो 1991 में जो इलेक्शन होता है कांग्रेस के और अपोजिशन पार्टी के बीच में जो इलेक्शन होता है, उसमें चौधरी देवीलाल जो है हार जाते हैं। नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, और दोबारा 1991 में जो है इलेक्शन होता है असेंबली का, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। तो 1991 के इलेक्शन में चौधरी देवीलाल की पार्टी को पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, एंड द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और इस तरह से जो है 1991 के इलेक्शन में कांग्रेस को बहुमत मिला और कांग्रेस की सरकार बन गई। एक बार द हिस्ट्री अबाउट द चौधरी देवीलाल who became the chief minister of the Haryana and promised to the farmer to waive the loan of the farmers and the businessmen and laborers। और इस तरह से अब छोटे-छोटे जो क्वेश्चन है बेटे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप लिख लीजिए, राइट डाउन द स्मॉल क्वेश्चंस। Yes, right. The first question. Who formed a new party
या पहला क्वेश्चन लिखिए नेम द मूवमेंट, नेम द मूवमेंट ऑफ चौधरी देवीलाल। Name the movement of चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल के आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो मैं इसको शॉर्ट में इसका आंसर लिख देता हूं। शॉर्ट में इसका आंसर उसको बोला जाता है नया नया युद्ध, नया युद्ध उनके मूवमेंट को बोला गया। और स्ट्रगल फॉर जस्टिस, इसको शॉर्ट में नाम है स्ट्रगल फॉर जस्टिस। सेकंड क्वेश्चन, नेम द पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड क्वेश्चन, नेम द पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पर न्यू कर दीजिए, नेम द न्यू पॉलिटिकल पार्टी। नेम द न्यू पॉलिटिकल पार्टी। नेम द न्यू पॉलिटिकल पार्टी which was formed by चौधरी देवीलाल, by चौधरी देवीलाल। तो नेम द न्यू पॉलिटिकल पार्टी which was formed by the चौधरी देवीलाल। इसका भी आंसर मैं ब्लैक बोर्ड में लिख देता हूं। उन्होंने जो नया पार्टी बनाया उसका नाम था लोकदल। लोकदल। उसके बाद है इन द हरियाणा असेंबली इलेक्शन ऑफ 1987 हाउ मेनी सीट्स चौधरी देवीलाल won out of 96? Third question, in the Haryana Assembly election, in the Haryana Assembly election of 1987 how many seats, चौधरी देवीलाल, how many seats चौधरी देवीलाल on out of
सीट्स। इसका भी आंसर मैं लिख देता हूँ। चौधरी देवीलाल 1987 के इलेक्शन में 90 सीट में 76 सीट्स उन्होंने ऑल किया जीता। He won the 76 seats out of 90 seats. And next, how many Chaudhary Devilal in Haryana? How many years? Next question. एक क्वेश्चन आंसर भी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी years Chaudhary Devilal ruled in Haryana? उन्होंने 4 साल तक 4 इयर्स तक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने रहे। But in the election of the 1991, he did not get the support of the citizen and Congress. They defeated them and Chaudhary Devilal could not get the majority and he lost the इलेक्शन। चौधरी देवीलाल जो है 4 साल तक जो है रूल करते रहे। 4 इयर्स 4 साल तक रूल करते रहे। Now come to the next page number. Come to the next page. Why do we need election? Why do we need election? हमें election की जरूरत क्यों है? And why in all the democratic country there is need of the election? Democratic country में election जरूरी क्यों है? The election take place regularly in any democracy. किसी भी democracy country में, democratic country में इलेक्शन जो अनिवार्य है। We noted in chapter 1 that there are more than 100 countries in the world in which election take place to choose people's representative. वर्ल्ड के लगभग 100 ऐसे देश हैं जहां इलेक्शन जो होता है। We also read that elections are held in many countries that are not democratic. और ये भी हमने देखा बहुत से ऐसे कंट्री हैं which are not democratic country, but there are elections are held. The people they contest the election, make the government, they choose the government, they give their votes. But why do we need election? अब ये क्वेश्चन है कि हमें इलेक्शन क्यों जरूरी है? Elections are essential because in democratic country, governments and rulers are elected by the people. क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को लोग वोट दे करके जो है इसको इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं।
तो let us try to imagine a democracy without election. A rule of the people is possible without any election. If all the people can sit together every day and take all the decision. But as we have already seen in the chapter 2, this is not possible in any large community. Nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters. Therefore, in most democracies, people rule through their representative. Is there a democratic way of selecting representative without election? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of the age and experience, or a place where they are chosen on the basis of the education of the knowledge. There could be some difficulty is deciding on who is more experienced or knowledgeable. But let us see the people can resolve these difficulties clearly. Such a place does not require election. But can we call this place a democracy? How do we find out if the people like their representative or not? How do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? How to make sure that those who the people don't like do not remain their representative? This requires a mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. Therefore, elections are considered essential times for any representative democracy. In an election, the voters make many choice. किसी भी इलेक्शन में वोटर जो है उसके बहुत सारे चॉइस होते हैं, पसंद होते हैं. In an election, the voters make many choice. They can choose who will make laws for them. सिटीजन चाहती है और इलेक्ट करती है इसी गवर्नमेंट को जो उनके लिए लॉ और कानून बनाए. They can choose who will form the government and take major decision. और इसके अलावा गवर्नमेंट बनाने के बाद जो डिसीजन लेती है और वेलफेयर की काम करती है. They can choose the party whose policies will guide the government and law making. These are the many choices of the people and the citizen. So they elect the government through the voting system. They give the vote and choose the government and the leader. This requires a mechanism by why they need to the election, because in all the democratic countries elections are held regularly after this specific time, like after 5 years, to choose the government, to form the government. The question देखिए, why do we need election? Election क्यों जरूरी है? Next question. Question लिखिए स्टूडेंट. Why do we need elections? Why do we need elections? Student, you can get the answer. In the why do we need election जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का बिल्कुल लास्ट जो थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ में इसका आंसर दिया हुआ है.
what can we call? What we can we call जो है यहाँ से इस पैराग्राफ का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो है लाइन छोड़ के आगे जाइए, वहां लिखा हुआ है दिस रिक्वायर्स ए मैकेनिज्म, यहां से अंडरलाइन कीजिए सर। दिस रिक्वायर्स ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. Therefore, elections are considered essential in our time for any representative democracy. यहाँ तक इसका आंसर हो गया। आगे इसका है सेकेंड पैराग्राफ, what makes an election democratic? The elections can be held in many ways. All democratic countries hold election. जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ इलेक्शन जो है कैप्टन इस स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है रेगुलर होते रहता है। But most of non-democratic countries also hold some kind of the election. But some countries are there in the world. They are the no democratic country. They are the non-democratic country. There are also some kinds of the election. वर्ल्ड के कुछ ऐसे भी कंट्री है जो डेमोक्रेटिक नहीं है, वे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। वैसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी जो है इलेक्शन होता है। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि केवल डेमोक्रेटिक कंट्री में ही इलेक्शन हो, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी एक प्रकार का वहां भी इलेक्शन होता है। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस from any other election? We have discussed these questions briefly. We discussed many examples of countries where elections are held, but they cannot really be called democratic election. और से ऐसे कंट्री है जहाँ इलेक्शन तो होता है लेकिन रियल में वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती। Let us recall what we learned there and start with a simple list of the minimum condition of a democratic election. A list of the minimum condition of a democratic election. Democratic election होने के लिए एक जो कंडीशन होना चाहिए। What conditions are essential for the election? First, तो a simple list of the minimum condition of a democratic election. Democratic election के लिए ये सारे कंडीशन होना चाहिए। तो what conditions are essential of a democratic country? What conditions are essential for the democratic elections? Next question लिखिए, what conditions are essential? What conditions are necessary? What conditions are necessary for a
democratic election, what conditions are necessary for a democratic election? डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए? इन द पेज नंबर 59, in the page number 59, there is the answer. See the paragraph. What makes an election democratic? What makes an election democratic? इस पैराग्राफ का जो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट्स आर देयर। ये फिफ्थ पॉइंट्स जो है इस आंसर में लिखने हैं। तो मार्क द ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एसेंशियल एंड नेसेसरी। इसका आंसर मार्क कर लीजिए। फर्स्ट, यहां से अंडरलाइन कीजिए आंसर। First point, everyone should be able to choose this. Means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. First point हो गया। Second point, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voters. This is the second point. Now third point, the choice should be offered at regular intervals. Elections must be held regularly every few years. And fourth point, the candidates preferred by the people should get elected. And now last, fifth point, the elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wishes. These are the 5 points. They are very, very essential for the condition of the democratic election. किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए ये 5 बातें जो 5 फैक्टर्स जो है एसेंशियल है। ये पांचों पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, जिसको आप इसमें लिखोगे। अब इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? पॉलिटिकल पार्टी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल कंपटीशन जरूरी है कि नहीं? Why political competitions are good in any democratic country? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल कंपटीशन एसेंशियल है कि नहीं, जरूरी है कि नहीं, ये हमें देखना है। Elections are thus all about political competition. This competition takes various forms. The most obvious form is to the competition among political parties. At the constituency level, it takes the form of the competition among several candidates. If there is no competition, election will become pointless. तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वहाँ पर जो इलेक्शन होता है, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में आपसी जो है कंपटीशन होता है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी दे वांट टू विन इन इलेक्शन। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन जीतना चाहती है। चुनाव में वो इलेक्शन एवरी पॉलिटिकल पार्टी तो दे वांट टू विन द इलेक्शन, so there are the many competition between the political parties. इस तरह से political party के बीच में
एक दूसरे के बीच में काफी कंपटीशन होता है। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? तो क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन जरूरी है, अच्छा है? क्लियरली एन इलेक्ट्रल competition has many demerits. It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. You you would have heard of people complaining of the party politics in our locality. Different political parties and leaders often level allegation against one another. Parties and candidates often use dirty tickets to win election. As you know, the student in all the democratic country, their elections are compulsory because through the election and voting system, we elect our leader in the government and form the ruler. So there are the many comparisons between the political parties. Some people say that this pressure to be electoral fight does not allow sensible long-term policies to be formulated. Some good people who many wish to serve the country do not enter this area. They do not like the idea of being dragged into the unhealthy competition. Our constitution makers were aware of this problem, and they opted from the competition in elections as they way to select our future leaders. They did so because this system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. The political competition is not necessary in such an ideal world, but what is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. They want to remain in power or get power and position for themselves. So many countries are there in the world where the elections are held after each 5 years for the elect the government and the rulers. So there are the many competitions between the different political parties. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. How do we deal with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other and more elastic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. Who decide this reward or punishment? The simple answer is the people. This is what electoral competition does. Regular electoral competition provides incentive to the political party and the leaders. They know that if they raise issues the people want to be raised, their opportunity and chance of the victory will increase in the next election. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो है, every political party they want to participate in the election and they want to win in any election. Now there is a question why elections are
here in the country and is it good to have political competition? किसी भी political डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल कंपटीशन जो है क्यों जरूरी है? इलेक्शन ऑफ द साल एक पॉलिटिकल कंपटीशन के वेरियस फॉर्म. नाउ राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question number 7. Is it good? Is it good to have political competition? Is it good to have a political competition? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन जो है जरूरी है? इसका आंसर मार्क कर लीजिए. इन ओल्ड बुक पेज नंबर 59 देयर इज द आंसर. पैराग्राफ. Is it good to have political competition? This is the paragraph. This is the paragraph. Here is the answer. I read the answer. Mark in your textbook. Is it good to have political competition? This is the paragraph. इसी पैराग्राफ का जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसका आंसर है. आंसर आप गिवन दिए. मार्क कर लीजिए. मैं रीड कर रहा हूँ आंसर. Elections are thus all about political competition. This competition takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, elections will become pointless. यहाँ तक इसका आंसर होगा. जिस कंट्री में, जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन कंपटीशन नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, वहाँ इलेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता. For all the democratic country where the democracy is there, so their political competition are just like essential. ये हो गया आपका आंसर. हो गया आपका. Is it good to political competition? फर्स्ट पैराग्राफ इसका आंसर है. इलेक्शन आर 10 all about political competition. फर्स्ट पैराग्राफ. Become pointless. यहाँ तक इसका आंसर होगा. In old book पेज नंबर 59. तो is it good to have political competition? इस पैराग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ लेना है. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट डे आगे मैं पढ़ाऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस इन द इलेक्शन. इलेक्शन में, इलेक्शन के टाइम में क्या क्या प्रोसेस जो है इन्वॉल्व किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस जो है लिया जाता है इलेक्शन के पीरियड में. व्हाट प्रोसेस आर यूज्ड इन एनी एवरी इलेक्शन लाइक लोकसभा, राज्यसभा एंड द विधानसभा. किसी भी इलेक्शन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस में कल आपको डिस्क्राइब करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देंगे. ओके.
Good morning, student. स्टूडेंट, आई थिंक इस सिस्टम में केवल सिस्टम में एक्चुअली स्पीकर का प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरे सिस्टम से फिर से लिंक कनेक्ट कर रहा हूँ।
morning. Good morning, sir. Camera mic. Please switch on your camera. Yes, Anusha. Speaker. Actually, speaker problem. Okay. Today we will discuss about coloring. Color. प्रीवियस लेसन में काफी सारे बच्चों का मैंने इंफॉर्मेशन लिया था, तो आपको कलर स्कीम आई थिंक कलर स्कीम आप भूल चुके थे। लास्ट कलर स्कीम लास्ट लेसन में मैंने जब आपको कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें कलर इवन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी आपको याद नहीं थे, तो एक बार फिर से हम रिकॉलेक्शन करते हैं कलर स्कीम का। 12 कलर भी हमने लास्ट इसमें स्टडी किया था, जिसमें हमने येलो, वायलेट, येलो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, सॉरी ब्लू, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, yellow, orange, green, orange, green, blue, blue, violet, red, violet, orange, red, orange। इस तरह से डिफरेंट कलर स्कीम्स हमने स्टडी की थी, शायद आपको रिकॉल हो रहा होगा। इसके बाद आज के टॉपिक में हम लोग मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। यू नो अबाउट मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम? कोई जानता है मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम के बारे में? प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, माइक आल्सो। कोई बता सकता है मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम के बारे में? ओके, मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम मींस जब भी आप सिंगल कलर, कोई भी सिंगल फ्रेश कलर लाइक रेड कलर अगर आप यूज कर रहे हो, मैंने जस्ट आपके असाइनमेंट आपको एक शेयर किया है आपके क्लास में, देख लीजिए आप। इसमें आपको ओके, अगर मान लो किसी भी फ्रेश कलर में, जैसे कि यहाँ पर मैं रेड कलर ले रहा हूँ, रेड कलर में इधर आप व्हाइट और ब्लैक कलर, रेड प्लस व्हाइट, रेड प्लस ब्लैक,
अगर इन कलर्स को ऐड करते हो, सिंगल कलर्स टोन क्रिएट करते हो, रेड क्रिएट करते हो, तो वो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर कैमरा अगर ऑन है तो यहाँ पर एक रेड कलर का एक पिक्चर मैं शो कर रहा हूँ, विजिबल है सबको? ओके, तो यहाँ पर देखो कि टिंट टू शेड, टिंट टू टोन मीन्स किसी भी कलर में अगर आप व्हाइट कलर ऐड करते हो तो उसके टिंट क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर रेड टू लाइट रेड मीन्स टिंट से लेके टोन तक, फ्रेश कलर तक जो एक सीक्वेंस क्रिएट किया गया है, एक ग्रे स्केल ग्रे स्केल एक स्केल क्रिएट किया गया है, तो इसे आप मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कह सकते हो। मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर्स यूज करके जब आप उसके शेड्स क्रिएट करते हो तो उसे मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कह सकते हैं। तो आज के असाइनमेंट में आपको यही करना है कि कलर की पॉसिबिलिटीज है, इसे मैं इरेज करता हूं। आपको 7x7 और 7 5 inches by 8 inches, 5 inches by 8 inches का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और जिसमें आपको यहाँ पर से डिवाइड कर देना है 3 4 9 keys 1 to 9 1 to 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 keys क्रिएट करनी है। उसके अंदर आपको कोई भी, जैसे यहाँ पर एक फिश का शेप यूज हुआ है ना, देखो यहाँ पर एक फिश का शेप यूज हुआ है, इसके बजाय आप कोई भी और शेप यूज कर सकते हो, जैसे बटरफ्लाई है या फिर कोई फ्लावर्स है या फिर कोई एनिमल शेप है, आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी अदरवाइज आप कोई ज्योमेट्रिकल या फिर नेचुरल शेप भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शेप चूज करने के लिए मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ, कोई भी शेप आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर वर्टिकल शेप यहाँ पर यूज हो रहा है, तो कोई भी वर्टिकल फॉर्म अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग कोई एलिमेंट यूज कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि हम लोग एक सिंपल एलिमेंट यूज कर ले। यहाँ पर तो फिशी ज्यादा यहाँ पर इफेक्टिव एलिमेंट्स मुझे नजर आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से इसका स्पेस डिवीजन हो जाना चाहिए। अभी आपको क्या करना है, टिंट मींस मान लो कि रेड में आप व्हाइट ऐड कर रहे हो, तो यहाँ से रेड प्लस व्हाइट, फर्स्ट की जो है रेड प्लस व्हाइट का टिंट एकदम हाई की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें हाई की यूज करनी है, हाई की। ये नेक्स्ट 3 को पैचेस है, मिडल की, यहाँ पर लो की, हाई की, मिडल की, लो की, 3 कीज क्रिएट करनी है। यहाँ पर एकदम लाइट टू डार्क जर्नी आपको स्टार्ट करनी है। कलर करते समय आपको एकदम लाइट में से धीरे धीरे आपको कलर सेट करते जाना है। रेड कलर कोई भी एक कलर चूज कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए रेड कलर यूज हुआ है, बट आप यहाँ पर रेड के अलावा कोई भी फ्रेश कलर यूज कर सकते हो। प्राइमरी कलर्स में से आप अगर ब्लू लेना चाहते हो ब्लू ले सकते हो, येलो कलर ले सकते हो, या फिर अगर सेकेंडरी कलर यूज करना है तो आपको ऑरेंज, ग्रीन या फिर
ऑरेंज, ग्रीन या फिर वॉयलेट कलर आप यूज कर सकते हो। ओके, बट कलर मिक्सिंग के लिए आप हो सके तो फ्रेश कलर, प्राइमरी कलर से यूज करो। तो आप मान लो कि यहाँ पर रेड कलर यूज करें तो रेड की फर्स्ट थिंग यहाँ पर आएगी। सेम अपोजिट सीक्वेंस, आपको इधर से इधर जाना है। सेम सीक्वेंस, मान लो कि आप यहाँ पर फर्स्ट कलर लगा रहे हो, सेम टोन आपको इस वाले शेप में यहाँ पर फिल अप करना है। सेकंड टोन यहाँ पर करना है, थर्ड टोन यहाँ पर करना है। सेम उनका सीक्वेंस आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये पिक्चर क्लियर हो जाने के बाद आप एक ही असाइनमेंट में 18 कीज क्रिएट कर सकते हो और उससे आपका एक सिंपल डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। प्लस कलर का जो पॉसिबिलिटीज है, कलर मिक्सिंग या फिर किसी भी कलर्स के वैल्यूज जो होते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज आपको पता चलेगी। तो सेम असाइनमेंट में प्रैक्टिकली भी आपको यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन देकर करके बताऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको कैमरा में शिफ्ट करने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, कैमरा एंगल अभी मैं थोड़ी देर बाद शिफ्ट करने जा रहा हूँ। बिफोर स्टार्टिंग आपको आपका जो स्पेस है उसको सिंपल एक बॉर्डर क्रिएट कर लेनी है विदाउट रूलर। आप इसे ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। सिंपल बॉर्डर क्रिएट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर से डिवाइड कर लेना है। स्पेस डिवीजन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि आपको रैंडमली नहीं करना है, इसको प्रॉपर काउंट करना है और उसके बाद ही आपको यहाँ पर उसे अप्लाई करना है। 1 2 3 4 8 1 2 3 4 8 इसके बाद 25 12 5 2 and half 2 and half 2 and half 1 2 3 2
यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज ये है कि आप अगर मान लो कि आपको रैंडमली रैपिड ड्राइंग करना है, आपके ड्राइंग में इजीनेस लाना है, तो जरूरी नहीं कि आप पैरेलल लाइन यूज करो, इसमें रिथमेटिक लाइंस भी आप यूज कर सकते हो। बस पर्पस ये हमारा कि हमें यहाँ पर कीज, डिफरेंट डिफरेंट कीज को हमें स्टडी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। यहाँ पर आप इस तरह से रिदमेटिक लाइंस, पैरेलल रिदमेटिक लाइंस, लिरिकल लाइंस यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आप सुटेबल जो भी आप शेप यूज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर फिश एलिमेंट्स यूज किया है, फिश का फॉर्म यूज किया है, इसके अलावा बटरफ्लाई का फॉर्म यूज कर सकते हो, फ्लावर का फॉर्म यूज कर सकते हो। बट याद रहे कि हमें उसमें ग्रेडेशन मिलना चाहिए, ग्रेडेशन फॉर्म, ये सारे जो हमने डिवाइडेशन किया है इसमें ओवरलैप होना चाहिए। इस तरह से आपको एक सिंपल ड्राइंग करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। इसके बाद एक कलर्स पैलेट आपको अरेंज करनी है। पैलेट यहाँ पर मैं अरेंज करूँगा ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें विजिबल हो। यहाँ पर मैं रेड कलर अप्लाई करने जा रहा हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जस्ट इसको अदर सब्जेक्ट की तरह जस्ट आपको देख के छोड़ना नहीं है, इसे आपको प्रैक्टिकली भी ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और विदाउट प्रैक्टिस इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं है। आप 10 बार भी ये चीज़ देखोगे, बट अगर आप उसको प्रैक्टिकली करोगे नहीं तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो बेटर है कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन तो देखना है, बट उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकली इसको वर्कआउट भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है असाइनमेंट को। ओके, लाइट टू डार्क हमेशा आपका एप्लीकेशन होना चाहिए। हाई की टूल्स आपको पहले यूज करने हैं। कलर, जब भी आप पैलेट में कलर प्रिपेयर करते हो तो आपको एक्स्ट्रा कलर प्रिपेयर करना है, क्योंकि कलर असाइनमेंट में अक्सर ये होता है कि कलर का जो मिक्सिंग है अगर प्रॉपर नहीं होता है, कम पड़ता है, तो आपको फिर से सेम टोन मैच करने में दिक्कत आएगी। तो बेटर है कि ज़्यादा कलर बनाओ ताकि
सेम वैल्यू आपको यहाँ यूज करनी है, सेम कलर्स आपको उसके अपोजिट साइड में यूज करना है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसमें कलर्स ऐड करते जाएंगे। पोस्टल कलर्स यूज करने इसके लिए आपको ओपेक मीडियम होना चाहिए। कलर जब असाइनमेंट आप करोगे तो आपको पोस्टर कलर्स ही यूज करने हैं, क्योंकि पोस्टर कलर्स में ना पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। सेम टोन आपको सेकंड वाले पैच में अप्लाई करना है। सर इसके बाद एक सर। डार्क टोन में यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा हूँ। यस अनामिका, वेरी गुड, वेरी गुड अनामिका। इस तरह से आपको सेकंड थर्ड पैच अप्लाई करना है और सेम पैरेलल आपको अपोजिट साइड से भी उसको फिलअप करना है। किसी भी मीडियम की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो अनगिनत होती है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि रेड कलर्स की पॉसिबिलिटीज क्या है ये भी स्टडी कर रहे हैं, और दूसरी बात कलर वैल्यूज जो है किसी भी मीडियम की जो पॉसिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती है वो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। फिश शेप जो है, फिश का शेप जो है वो आप आपके हिसाब से उसको डेकोरेटिव यूज कर सकते हो,
जरूरी कि एज इट इज आपको करना है, आप उसको मॉडिफाइड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। सेम टोन याद रहे कि आपको सेम टोन आपको बैक साइड में भी रिपीट करना है, तो कभी कभी मिसिंग हो जाता है, तो साइड बाय साइड आपको उसे अप्लाई करते रहना है। यहाँ पर हमने 9 कीज अप्लाई की है, तो एक की यहाँ पर जो रेड फ्रेश कलर है वो यहाँ पर इक्वल आ रहा है, मीन्स यहाँ पर आपको दोनों का सेंटर यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद आपको इसमें ब्लैक कलर ऐड करना है। यहाँ तक आपको अप्लाई करने के बाद आपको इसमें रेड के साथ ब्लैक कलर ऐड करते जाना है धीरे धीरे। याद रहे ब्लैक कलर वैसे तो वो डेंजर कलर होता है, बाकी सारे कलर्स को वो डल कर देता है, इसलिए जब भी आप ब्लैक कलर यूज करोगे तो एकदम केयरफुली यूज करना है, क्योंकि बाकी सारे कलर्स उससे डल हो जाते हैं। एकदम उसका प्रोपोर्शन एकदम कम होना चाहिए। सेम यहाँ पर अपोजिट साइड में फिर से हमें डार्क कलर अप्लाई करना है। धीरे धीरे लाइट टू डार्क हमारा जर्नी होना चाहिए। और डार्क उसमें ऐड करने जा रहा हूँ। आई थिंक हमारा टाइम
एक्चुअली कोई भी आर्ट जो होती है वो टाइम बॉन्डिंग नहीं होती है, इसमें आपका इंटरेस्ट या फिर आपका जो डेलिकेशन होता है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। कई सारे अगर आप आर्ट वर्क देखोगे ग्रेट आर्टिस्ट के, तो उसमें कई सारे साल चले जाते हैं। तो बेटर है कि आप इसे जब भी आप फ्री हो, अदर सब्जेक्ट का वर्कलोड ना हो, तब आप इसे करोगे तो ज़्यादा इजीली आप इसको अच्छी तरह से कर पाओगे। आर्ट में क्वांटिटी से हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी मेंटेन नहीं करनी है। भले ही आप एक असाइनमेंट कम सबमिट करो, बट उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। टाइम तो मुझे आ रहा है, मैं फटाफट इसको फिनिश कर देता हूँ। क्योंकि मैंने कैमरा का सेटअप भी अभी चेंज कर दिया है, तो थोड़ा सा नेक्स्ट जो क्लास है आपका उसके लिए एक्चुअली टाइम इज़ ओवर, सो इसको हम नेक्स्ट क्लास में से हम कंटिन्यू करेंगे। Assignment will be continued in next class. ओके, तो इस प्रोसेस से आपको फिनिश करना है। एक्चुअली कैमरा डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसे होमवर्क में इसको फिनिश करना है, जितना पॉसिबल है आप जितना ज़्यादा हो सके उसको आपको टाइम दो और उसको फिनिश करो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सी यू, बाय बाय। Just leave the call option आ रहा है। Recording stop.